اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم کسی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کرنے والے، بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ بیمار نہیں ہونا چاہتے تو آپ کو روزمرہ زندگی میں کون سی عادات کو اپنانا چاہیے کہ آپ کبھی بیمار نہ ہوں۔ آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں گا، اگر آپ ان پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ روزمرہ زندگی میں آپ ان کو اپنا کر آپ صحت مند رہ سکتے ہیں۔ نت نئی ایجادات اور دریافتوں کے حوالے سے تو بہت سے لوگ واقف ہوں گے۔ اخبارات، جرائد اور رسالوں میں بیماریوں کے علاج پر بھی عمیق نگاہ لوگ رکھتے ہوں گے، جس کا محرک کہیں نہ کہیں انسان کے لاشعور میں بیٹھا وہ ڈر ہے کہ کبھی اسے خود یا اس کے کسی پیارے کو وہ بیماری لاحق ہو جائے تو علاج کروا سکے۔ ماہرین کو بھی عموماً بیماریوں کے پیدا ہونے کی وجوہات اور ان کے علاج کے لیے سرگرم دیکھا گیا ہے۔ حیرت انگیز بات مگر یہ بھی ہے کہ ایسے ڈاکٹر حضرات کم ہی دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں جو کہ آپ کو آگاہ کرتے دکھائی دیں گے کہ بیمار ہونے سے پہلے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ بیمار ہونے کے بعد دوائی تو سب دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ بیمار ہونے سے پہلے آپ نے بچنا کیسے ہے۔ یہ بات تو عقل مند حضرات اچھے سے جانتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ انسان جب کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو مشکل سے ہی جان چھوٹتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ بیماری موذی ہو تو جان کے لیے یوں سمجھو کہ گئی۔ افسوسناک حقائق یہ بھی ہیں کہ دور حاضر میں مادیت اور کمرشلائزیشن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ مسیحا بجائے بیماریوں سے بچاؤ کی آگاہی پر توجہ دینے کی بجائے بیماریوں کے علاج اور دواؤں پر زور دیتے نظر آتے ہیں۔ معمولی نزلہ اور زکام کی دوائیں بھی 4 سے 6 گولیوں سے کم نہیں ہوتی، اور جن کی قیمت عام آدمی کی جو ہے وہ اوقات سے بساط سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے، اور ڈاکٹروں کی فیسیں تو اللہ ہی حافظ ہے اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان کے ہوش ہی اٹھ جاتی ہیں۔ خیر، یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن فی الوقت ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے معمولی اقدامات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اگر کچھ چیزیں شامل کر لی جائیں تو ہماری عادات میں ایک تبدیلی آئے گی، جس کا اثر یقیناً صحت پر بھی پڑے گا اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ سنہری ہدایات ان تمام لوگوں کے لیے پیش خدمت ہیں جو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے متحرک رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ان پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ نمبر 1، پانی زیادہ پئیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جملہ تو سب نے اکثر و بیشتر سن رکھا ہوگا، شاید کسی ملحد جو اللہ کو نہیں مانتے کے لیے یہ بات ناقابل یقین ہو کہ وہ اس کو نہ مانتا ہو، لیکن جدید سائنس بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پانی سے بڑی کوئی نعمت انسان کو قدرت کی طرف سے عطا نہیں کی گئی۔ اگر یہ کہیں بھی پانی کی زندگی، یوں سمجھ لیں کہ اگر پانی نہ ہوتا زندگی میں تو زندگی کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کی زندگی کی ابتدا بھی پانی کی ایک بوند سے کی ہے، جسے قرآن مجید نے نطفہ کہہ کر بیان کیا ہے سورۃ یاسین میں۔ جب انسان میں پانی کی مقدار مناسب درجے پر موجود رہتی ہے تو وہ صحت مند بھی رہتا ہے، کیونکہ اسے اندر سے جراثیم اور زہریلے مادے خارج ہوتے رہتی ہیں۔ امریکی ادارہ صحت کی ایک تحقیق کے مطابق کسی شخص کو ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے، اس کا بہترین پیمانہ یہ ہے کہ اپنے وزن کو پاؤنڈ میں دیکھیں، پھر اسے آدھا کر دیں اور ان آدھے پاؤنڈ کے برابر آپ پانی پئیں۔ جیسے کسی شخص کا وزن اگر 150 پاؤنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 75 اونس پانی روزانہ پیے۔ آسان الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کم از کم 2 لیٹر پانی روزانہ پیے۔ نمبر 2 کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے کہ پوری نیند لیجیے۔ جی ہاں دوستو، یہ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نہ ہی کم سونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ سونا چاہیے۔ کم اور زیادہ سونا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن معتدل اگر آپ کی نیند ہوگی تو وہ آپ کی صحت پر کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، یہ جملہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، مگر آج کے دور کا المیہ کیا ہے کہ نرم گرم بستروں پر بھی نیند نہیں آتی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رات دیر تک موبائل فون کا استعمال کرنا۔ تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ رات کی نیند پوری نہیں لیتے ان کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور نتیجتاً وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نیند سب سے اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ سونے کے دوران آپ کا جسم اپنے اندر بیماریوں کے خلاف مذمت کرنے کی صلاحیت بڑھا لیتا ہے، اور اس سلسلے میں نیند کا وقت اہمیت رکھتا ہے۔ قدرت نے ہمارے جسم کے اندر ایک الارم لگا رکھا ہے، یہ کہ جو مختلف چیزوں کے متعلق ہمیں بتاتا رہتا ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے ہمیں نیند کا غلبہ محسوس ہوتا ہے، مگر کیونکہ ہمیں رات دیر تک جاگ کر خود کو
मैं कहना नहीं चाहता, उल्लू के मुशाबे करार देने का शौक़ होता है जब भी उस वक्त को हम अहमियत नहीं देते। यूँ रात गए सोने और दिन ढलने उठने को फैशन के तौर पर अपना चाल चलन करने वाले को अंदरूनी तौर पर आप कमज़ोर हो जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नींद हर शख्स के लिए बेहद ज़रूरी है, मगर याद रहे कि इसका मुनासिब वक्त रात 9 से 10 के दरमियान शुरू हो जाता है और बेहतरीन वक्त ये भी है कि आप नमाज इशा पढ़ कर फ़ौरन आराम करें। नंबर 3, जरासीम से पाक रहिए। अगर आपको ये बताया जाए कि आपके जिस्म में इन्फेक्शंस की तरसील का सबसे अहम ज़रिया आपके स्मार्टफोन्स और चाबी हैं, तो यकीनन आपको बड़ी हैरानगी होगी। तो जी भर के हैरान होंगे। आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आपकी सोच से कई ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि वो हर जगह से अपने साथ जरासीम का एक जम्मे गफ़ीर लेकर आ जाती है। जब वो जरासीम उसे छूने से उंगलियों में मुंतकिल होती हैं तो वो हाथ, आँखों, मुंह, नाक और कान के ज़रिए जिस्म में जाकर वायरस का सबब बन जाती हैं और इन्फेक्शन का बायस बन जाती हैं। और यही हाल गाड़ी, बाइक और घर की चाबियों का होता है, जिन्हें साफ़ करने की नौबत कभी भी नहीं आती। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना अपने मोबाइल फ़ोन और चाबियों को वाइप से ज़रूर साफ़ करें और घर में कोई बीमार है तो उस एहतियात को मज़ीद बढ़ाने से रोक लीजिए। नंबर 4, योगा या मुराकबा कीजिए। ये शायद आपने कभी नहीं किया होगा, इसलिए इसके बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहता, थोड़ा सा बता देता हूँ। माहिरीन का कहना है कि ज़रूरत इस अमर की है कि लोग अपने स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं। इस हवाले से एक डॉक्टर का कहना है कि रोज़ाना कुछ वक्त निकाल कर मुराकबा या योगा करें, जिसमें लंबे लंबे सांस लें और ख़ुद को पुरसकून महसूस करें। अगर यह हद से बढ़ जाए तो इस ज़िम्मन में किसी माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग में मदद लें, और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप पागल हैं, बल्कि यह आपको पागलपन से बचाने में मददगार होगा। नंबर 6, बाहर निकलें। क्या आपके ख्याल में अपने बिस्तर में घुसे रहना और सारा वक्त अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स में मसरूफ़ रहना आपकी सेहत के लिए दुरुस्त अमर है? अगर इसका जवाब आपके नज़दीक हाँ है तो ये लम्हिया फ़िक्रिया है। आप जदीद टेक्नोलॉजी ने इंसान को सहल पसंदी की तरफ धकेला तो साथ ही साथ उसे मुआशरती मेल जोल और रवाबत से भी दूर कर डाला। बाहर निकल कर देखने से मालूम होता है कि कुदरत की सनाई कितनी हसीन है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितना हसीन बनाया है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें तो ज़रूरी है कि आप बाहर निकलें, खुली ताज़ा हवा में सांस लेकर देखें। आप ख़ुद को चुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। अपनी रोज़ाना की रूटीन सेट कर लीजिए कि कम अज़ कम 1 घंटा आपने वॉक करनी है। एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी कतई इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप सारा वक्त घर में टेक्नोलॉजी के साथ मसरूफ़ रहें, बल्कि बाहर निकलने की तरगीब भी देता है, जिससे आप एक कुदरती माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। धूप ही की मिसाल ले लीजिए। विटामिन डी हासिल करने का सबसे बड़ा और सस्ता ज़रिया क्या है? धूप है। कोशिश करें कि रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में ज़रूर बैठें, इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। और अगर आप सुबह की सैर हरी हरी घास पर नंगे पांव करेंगे तो कुदरत से बेशुमार फ़ायदे आपको मिलेंगे। गर्म पानी पिएं। हमारे यहाँ गर्म पानी तो गरारे, गले ख़राब होने की सूरत में या फिर सर्दियों में नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर अक्सर लोग इनकी हक़ाइक़ से, इनके इफ़ादियत से नापेद हैं। उनको पता ही नहीं है कि गर्म पानी पीने के फ़वाइद क्या हैं। तहकीकात से ये बात सामने आती है कि जहाँ गर्म पानी पीने से बलगम को सांस की नालियों से गुजरने में मदद मिलती है, वहीं ये नाक में अंदरूनी सोजिश को कम करने में भी मदद देता है। एक डॉक्टर के मुताबिक गर्म पानी में शहद, लीमू और एक टुकड़ा दार चीनी मिलाकर पीना सेहत के लिए बेहद मुफीद है। अपनी नाक को साफ़ कीजिए। तहकीक से ये बात भी साबित होती है कि नाक में मौजूद रतूबतें बहुत सारी सूरतों में इन्फेक्शन से बचाती हैं, क्योंकि जरासीम हवा के रास्ते नाक में दाखिल होकर अपना बसेरा कर लेते हैं और नाक में मौजूद रतूबतें उन्हें ख़त्म कर देने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन इससे बेहतर अंदाज में दिफा करने के लिए नाक को नमकीन वाश से धोना बेहद मुफीद है। ये कहना है कि मेडिकल एक जो टीम है वो बताती है कि नाक के अंदरूनी हिस्से में स्प्रे करना ज़ुकाम पैदा होने से आपको रोक देता है। नबाताती तेल इस्तेमाल कीजिए। बाज़ औक़ात थकावट से आपका जिस्म टूटने लगता है और ये एहसास आसाब पर सवार हो जाता है। इसी सूरत हाल से बाज़ औक़ात बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं और तकलीफ़ महसूस करते हैं। ऐसे में बजाय परेशान होने और डॉक्टर के यहाँ जाने की बजाय आप नबाताती तेल का इस्तेमाल कीजिए, जो कि करिश्माती नताज का हामिल होता है।
जब भी आप किसी थकावट को महसूस करें, चंद कतरे हथेलियों पर तेल डालें और मुताल्लिका जिस्म के हिस्से पर लगाकर उसे हल्के से मालिश कर दीजिए। ख़ास तौर पर जब आप काम करने वाले मर्द व ख़वातीन जिनको 8 से ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता हो और उनके पैर जूतों में बंद रहते हों, उन्हें चाहिए कि ज़रूर अपने पैरों और रीढ़ की हड्डी पर हल्का हल्का मसाज करें। माहिरीन ये भी बताते हैं कि नबाताती तेल में ख़ुसूसन नियाज़बूस के तेल में ऐसे एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो थकान को भगा देती हैं। खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारिए, जरासीम से इतना मत घबराइए। नंबर 12, जिम जाइए। लोग अक्सर उसी वक्त जिम जाते हैं जब वो अपना वज़न कम करने के दर पे हों। बहरहाल ये बात तो नई नहीं कि वर्जिश सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, मगर ये बात शायद आपको पहले से मालूम ना हो कि वर्जिश जिस्म में इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा करती है। जब इस हवाले से एक सर्वे किया गया तो वर्जिश करने वाले अफराद का ये कहना था कि बाकायदगी से वर्जिश करने से वो बीमारियों से बचे रहते हैं। तौलिया बदलते रहिए, ये भी आपको यकीनन जानना चाहिए कि आप हमेशा एक ही तौलिया इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तहकीक से ये बात साबित होती है कि किचन में रखे हाथ साफ करने वाले तौलिए 89% जो वो बैक्टीरिया के हामिल होती हैं जो कि घर भर के अफराद को बीमार करने में हमेशा अव्वल रहती हैं। ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी के बारे में तो आपको बहुत सारा पता होगा, इसके बहुत सारे फ़वाइद के बारे में भी आपको पता होगा, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये न सिर्फ वायरस का शिकार होने से बचाती है बल्कि वायरस के दौरानिए को कम करने में भी मदद देती है। सब्ज़ चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सेहतमंद खुलियों में जाकर इन्फेक्शन के हमलों से बचाव में मदद देने के साथ साथ वायरस के दौरानिए ख़ुसूसन नज़ला ज़ुकाम और बुखार को कम करने में भी मदद देती है। दोस्तों के साथ मिलकर बैठिए, गप्पे लगाइए, हंसिए, मजाक कीजिए और अक्सर उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दोस्तों के साथ मिल बैठकर कुछ वक्त ज़रूर गुजारें, इससे आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। रिसर्च के मुताबिक माशरती ज़िंदगी में अच्छे लोगों से मेल जोल आपको अच्छी, खुशगवार और लंबी ज़िंदगी जीने में मदद फराहम करता है। दही खाइए। दही सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि न सिर्फ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इफादियत के हामिल होती हैं बल्कि बीमार होने से बचाते भी हैं आपको। दही में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। खमीर ज़दा खानों में जैसे चीज़, पनीर और दही इंसानी जिस्म में आंतों की फ़ालियत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस ज़िमन में दही सर फहरिस्त है क्योंकि ये आंतों के इन्फेक्शन से बचाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तहकीक से ये बात भी साबित होती है कि दही खाने से सांस की नालियों में पैदा होने वाले इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा होती है। गरारे कीजिए। कदीम ज़माने में लोग रोज़ाना गरारे किया करते थे, बल्कि ये उनका एक नुस्खा था और ये नुस्खा गले की ख़राबी से बचाव का मुस्नद नुस्खा समझा जाता था। जापान में की गई एक तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि रोज़ाना गरारे करने से सांस की नाली में इन्फेक्शन नहीं होता। अलबत्ता इस पर नाक़दीन का ये ख्याल है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार नताइज ऐसे ही हों। बहरहाल गरारे करने से आपके गले को सुकून ज़रूर मिलेगा, तो बेशक आप रोज़ाना गरारे मत करें, मगर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ऐसा करना आपको फ़ायदा दे सकता है। सेब का सिरका इस्तेमाल कीजिए। सेब का सिरका बहुत से मामलात में मददगार साबित हो सकता है, खुसूसन नाक और गले के इन्फेक्शन की सूरत में, क्योंकि इसमें जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। मज़ीद ये कि इसमें मौजूद पोटाशियम बलगम को पतला करने में मदद भी फराहम करता है। मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र अपनाइए। आपका जहन और जिस्म दो अलग चीज़ें नहीं बल्कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप जो सोचते हैं उसका असर हर सूरत में आपके जिस्म पर होता है। जो लोग मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र को अपना शिआर बना लेते हैं वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारती हैं। मनफी सोच ज़हन और जिस्म पर बुरे असरात मुरतब करती है जिनसे इंसान ज़हनी हिजान का शिकार होकर बीमार पड़ जाता है। हमारे यहाँ उमूमन ख़वातीन में ये मसाइल ज़्यादा पड़ जाती हैं क्योंकि मनफी अंदाज़ फ़िक्र अपना कर वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेती हैं जिसका नतीजा बीमारियों की सूरत में वाज़ेह होता है। ये बात तहकीक से वाज़ेह हो चुकी है कि मुस्बत और मनफी अंदाज़ फ़िक्र इंसानी सेहत और उम्र पर असर अंदाज हो सकती हैं। अगर आप बीमार नहीं होना चाहते तो जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं इन पर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये आदत आपको अपनाएं इनको। इंशाअल्लाह आप कभी भी अल्लाह ताला के हुक्म से बीमार नहीं होंगे। आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।